Good morning, everyone. Thank you for Morning, joining. sir. Good morning. Okay, so guys, the thing that we were discussing, from so many days, that there is something going on FMCG or rural demand or urban demand not picking up and things like that. Can I say this is something which we were looking at key revival in urban areas because they have also mentioned over here that majority of the demand, the sales, 70% is urban and 30% is rural. Rural is recovering, we know, rural में सब चल रहा है, but now urban is recovering. Now this is a good article. ये इकोनॉमिक टाइम में भी आया है, बिजनेस स्टैंडर्ड में to people, this is what help me now to track the FMCG sector closely. Specifically, if you know that there are some 70% overall comes from source. 70% from the urban area, urban markets. So they have talked about some input cost. Now, this is a very important data There's an point. audio issue from your end. So sorry, I'm so sorry. Am I audible now? Yes, sir. तो पहले Yes, दिन sir. के Sorry. Okay. Sorry. My mic connect करना रह गया. Okay. So, guys, so what I was telling is, in the entire 2 months, we were talking about FMCG. हर दिन न्यूज आने का है ना FMCG. Rural demand is picking up, urban is not picking up. Rural में ऐसा MSP prices are increasing, etc., etc. But the problem is 70% of the overall sales, we know that it was coming from urban. That everyone knows, and that is the reason and that is the major reason that the stock was the FMCG sector was not performing, and we had various issues like input cost rising, commodity cost rising, palm oil price increasing, inflation increasing. Then I will say something like coffee prices increasing. All these things are written over here. बीच में एक टोमेटो और ऑनियन के प्राइसेस भी बढ़ गए थे in the last 2-3 months that we were talking about. Obviously, crude has also increased, which has led to increase in the palm oil. So all these things, we were tracking. I still remember I was tracking it from not your batch, the previous batch. The January, November batch which started. I was tracking that time. Imami, we started tracking that. From that point, now I realized that there should be a bounce back in the FMCG sector. Probably not now because it comes with a quarter lag. And what we are seeing from the last 2-3 months is that inflation is easing not 2-3 months, last month I will say, inflation is easing out. करेक्ट, ये हमने उस दिन भी बात की थी. इन्फ्लेशन इजिंग आउट. पाम ऑयल के प्राइसेस की मैंने बात की थी इन आवर मॉर्निंग कॉल्स. इट हैज डिक्लाइंड. देन अर्बन डिमांड वाज फ्लोइंग अप एंड सिंस इन्फ्लेशन हैज डिक्लाइन, ये भी आया था कि अर्बन डिमांड इज इंक्रीजिंग. तो ये सब हमने अजम्पशन किया था कि इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है तो ना अर्बन डिमांड विल इंक्रीज, या ना आई विल से इन्फ्लेशन डिक्रीज, अर्बन डिमांड हम बोल रहे थे डिक्लाइन हो रहा है. बट ऑब्वियसली एफएमसीजी इज अ डिफेंसिव सेक्टर. सो तुम्हारे प्रोडक्ट्स का डिमांड कभी कम नहीं होगा. Probably we were also talking about the the tax cuts, which will lead to an improvement in higher disposable income. People are moving towards I will say a premium product. FMCG ने प्राइस हाइक किए है. अब मुझे बताओ, कल ही मैं डीमार्ट गया था. स्पेसिफिकली आई टुक माय वाइफ टू डीमार्ट जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस. वो हर महीने जाते हैं ना, हर तो कल फर्स्ट 30th था ना, तो हर महीने वी गो टू डीमार्ट, करेक्ट, ग्रोसरीज भरने को. तो आई वॉज देयर द एंटायर 1 hour. माई वाइफ इज लाइक, तुम क्या कर रहे हो इधर डीमार्ट में, तुमको किसने बुलाया, मुझे 4 चीजें लेनी थी, मेरा हो गया लेके, तुम क्या कर रहे हो. आई वॉज लुकिंग एट ऑल द प्राइस हाइक्स, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं प्राइस क्या होता है, कितना बढ़ा कितना कम हुआ. आई गो एंड स्वाइप द कार्ड, उसको चाहिए था तो चाहिए था, ऑब्वियसली वी वांट राइस. बट ऑब्वियसली इतने छोटे चीजें आई एम नॉट डूइंग, मैं इसके लिए नहीं करता बिकॉज लेट्स से ना आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी एंड ऑल. बट आई एम डूइंग इट जस्ट टू एनालाइज. माई वाइफ इज लाइक, देखो 2 रुपया बढ़ गया, तेरे को क्या फर्क पड़ता है. I was like, अरे this is not about 2 rupees increasing. Think from a business point of view, उनको कितना फायदा हो रहा है. It's 2 rupees increasing and the value.
कल ही मैंने देखा वो बॉर्बन बिस्किट का प्राइस हैज इंक्रीज। 10 रुपया था, आई थिंक दे हैव गिवन सम 10 नहीं सॉरी 10% एक्स्ट्रा दिया था वो लोग ने, तो आई स्पेसिफिकली बॉट दैट वन 10 रुपए वाला, कि कितना एक्स्ट्रा, मेरे पास पहले का भी एक पैक था। सो दे हैव इंक्रीज, मतलब वो बीच पता है, यू नो दैट thing happened that they were saying that we will transfer the price to the customers, transfer the price hike to the customers, या बीच में एक बार न्यूज भी था कि we will not transfer, we will take it। ये 2-3 महीने पहले की बात है। we will only keep the price stable, like input cost हम नहीं Yes, sir. हम प्राइसिंग नहीं बढ़ाएंगे। तो वो लोग ने क्या किया था, उनका कॉस्ट कम करने को, सॉरी नॉट कॉस्ट कम, टू compete with other players in the market, they have increased their size। मतलब कॉस्ट कम नहीं किया था बट साइज इंक्रीज कर दिया था के प्रोडक्ट का। ये तभी का प्रोडक्ट था, 2 महीने पहले का। मैंने उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देखा, 2 महीने पहले का था वो। आई स्टिल रिमेम्बर कि वो 2 महीने पहले का ही बिस्किट था, कि 10%। अभी जाके देखो बॉर्बन प्राइस नेक्स्ट क्वार्टर में, यू विल सी दैट्स एन इंक्रीज इन द प्राइस। वैसे बिस्किट्स हुआ, तुम्हारे डिटर्जेंट हुए, सोप्स हुए। अभी जैसे पाम ऑयल डिक्लाइन हो गया, तो क्या सोप का प्राइस डिक्लाइन होगा? ऐसा कभी हुआ है? Did that ever happen that No, sir. the palm oil decreasing, so your soap price will decrease? नहीं हुआ ऐसा। toothpaste price, those all things will never decrease. So this is a right point. Now if you track FMCG ना, you have data from last 3-4 months। तुम कॉन्फ्रेंस कॉल में जो है ना, मेरे मॉर्निंग कॉल्स में वो लिस्ट पे जाके देख लेना, जहां जहां पे एफएमसीजी की बात की थी। ऑल कैन बी लिंक टुगेदर एंड इट कैन, यू कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट थीसिस ऑन इट, कि सर आई एम ट्रैकिंग इट फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, ऐसा ऐसा हो रहा है। वी हैव ऑल्सो लास्ट कॉन्फ्रेंस, तो इसके लिए मैं बोल रहा था कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ के रखो लास्ट क्वार्टर्स के, 1-2 क्वार्टर्स के होने, कम से कम 4 क्वार्टर्स के तुम्हारे पास कॉन्फ्रेंस कॉल पता होना चाहिए कि लास्ट 4 क्वार्टर्स मतलब क्या बात कर रहा है। एंड यू विल सी अ डिफरेंस इन दिस कॉन्फ्रेंस कॉल, कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, इन्फ्लेशन इज कूल ऑफ, और ये सब हमको पहले से पता है। हम तो अभी इसको क्वेश्चन पूछना है कि तुम एडिशनली क्या कर रहे हो, अर्बन डिमांड तो रिकवर हो रहा है, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी टू, जो डाउन ट्रेडिंग जो हो रहा है एफएमसीजी में, बिकॉज पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स आइदर प्रीमियम प्रोडक्ट्स और आइदर द लो मास प्रोडक्ट, बीच में ये एफएमसीजी कंपनीज का कोई प्रोडक्ट ले नहीं रहा है। तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू इन दिस काइंड ऑफ स्पेस? तो वो आंसर तुमको कॉन्फ्रेंस कॉल पे मिलेगा। इफ यू हैव द गट्स, यू कैन गो एंड आस्क देम। लाइव कॉन्फ्रेंस कॉल जब होते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं कि एनालिस्ट कोई ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चन नहीं पूछे, तुम बिंदास क्वेश्चन पूछ सकते हो, बोलना कि आर के एडवाइजरी से तुम हो, दे आस्क यू नेम एंड कंपनी। काफी सारे स्टूडेंट्स ने पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चन ना, कौन के है आर के एडवाइजरी से, so you can go and ask them। and the input cost, the data points that we are talking about, कि कितने बड़े थे, कोई पूछे कि कितना बड़ा था, तो ना वीट 17% से बड़ा था, पाम ऑयल वो 17%, सबसे ज्यादा कॉफी बड़ा था, कोको कोका ये कोको इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉफी, 78% बड़ा था। हाँ, तो क्या हो रहा है, हायर इनपुट कॉस्ट में लीड टू सिलेक्टिव प्राइस इंक्रीजेस ड्यूरिंग द जून क्वार्टर, पोटेंशियली इंपैक्टिंग द वॉल्यूम्स एंड मार्जिन्स एंड द कंज्यूमर प्राइस कैटेगरी। तो 1-2 क्वार्टर तो और होगा, मतलब दिस इज अ लैग, इट कम्स विद अ क्वार्टर लैग। सितंबर जून का रिजल्ट होगा, जून नहीं सितंबर, यू विल सी ग्रीन शूट्स कमिंग इन द मार्जिन्स इन सितंबर। ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो वी हैव डन अ रॉन्ग एनालिसिस। ठीक है, मैं जो भी 3 महीना कर रहे हैं, वो 6 महीने बाद उसका इम्पैक्ट क्रॉस मार्जिन में दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। सो नाउ आई विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन द एफएमसीजी कंपनी। मुझे पता है कि यहाँ पे आई हैव टू पुट मनी। अगर आज मुझे कोई बोले कि डिफेंसिव कौन सा ये मार्केट में कहाँ पे जाना है, तो आई श्योरली गो विथ एफएमसीजी। मैं रॉन्ग भी जा सकता हूँ, इसमें गया भी हूँ लास्ट क्वार्टर में, बिकॉज वो उसके प्राइसेस और बढ़ गए थे। बट दिस इज व्हाट आई हैव सीन, दिख रहा है अभी अर्बन डिमांड, एंड द मैक्रो इकोनॉमी इज ऑल्सो सपोर्टिंग, inflation declining, urban consumption increasing। okay। सर एक कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है सर। हाँ, सर एक्चुअली सर वीट का जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन सर, वो मोर देन एक्सपेक्टेड हुआ था सर गवर्नमेंट के एस्टिमेशन से, हाँ, इवन दो द वीट प्राइस इज आल्सो इंक्रीज सर, व्हाई सर? नहीं नहीं, ये अभी का नहीं है, ये लास्ट क्वार्टर का है ये। इट कम्स विद अ क्वार्टर लैग, ये हाँ सर दिसंबर का लास्ट प्राइस है। क्वार्टर सर। ये दिसंबर का प्राइस है, मतलब दिसंबर जनवरी का प्राइस होगा वो, अभी का नहीं है, आज मारिको का का सर प्राइस नहीं। न्यूज आया था सर। क्या हुआ? ऐसे मारिको का भी न्यूज आया था सर, उन्होंने ये कहा था मारिको ने कि जो हमारा जो इफेक्ट है ना प्रॉफिटेबिलिटी का, वो हाँ, Q2 FY26 में दिखेगा सर, एफ Q1 में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा हाँ सर, ये तो वही बोला बोला ना था। मैंने, Q2 की बात की ना, अभी सितंबर क्वार्टर के बाद ही दिखेगा बोला ना मैंने।
हाँ सर, वही बता रहा था सर मैं भी। हाँ, ये दो दो क्वार्टर लैग होता है इसमें, 1 से 2 क्वार्टर। तो ये भी तभी के प्राइसेस है। अभी तो किया ना हमने, पाम ऑयल सत्रह यस। परसेंट से किधर गिरा है, तो गिरा है उल्टा ऊपर से तो। हाँ हाँ सर, हाँ सर। उस दिन ही देखा ना हमने। ओके, anyone else wants to start? So this is, a sector to look at. And हाँ, anyone to talk about auto? Hemant? Sir, I want to talk about auto ancillary parts. हाँ, बोलो बोलो, ओके फाइन। सर वो एक्चुअली क्या, कल का न्यूज और आज का न्यूज कंबाइन करके बोल रहा हूँ सर, एक्चुअली कल बोल नहीं पाए थे सर। हाँ बोलो। सर इंडिया का जो एक्सपोर्ट जो है सर यूएसए को, सर 2.2 बिलियन डॉलर्स का, 21.2 बिलियन डॉलर का था सर टोटल एक्सपोर्ट, और जिसमें यूएस को एक्सपोर्ट गया सर 2.2 बिलियन डॉलर्स का। अराउंड सर 27% इंक्रीज हुआ है सर लास्ट ईयर से सर। ओके। और सर, मतलब मैं मोटा मोटा बताता हूँ सर। अगर हम लोग इंडियन कंपनीज की बात करें सर, सोना, कॉमस्टर, संवर्धन, मदरसन, भारत फोर्ज, इन सब का अगर हम लोग सेल्स देखें सर, सोना कॉमस्टर का सेल्स 43% सेल्स वहां से आता है सर, यूएस से यूएस से, हाँ। एक्सपोर्ट करते हैं जब। करेक्ट। हाँ, मदरसन का सर 18% एंड भारत फोर्ज का सर 38%। और सर हम्म। जो ज्यादा अफेक्ट होने वाला है सर ऑटो इंसिलीज में, वो जो चेसिस विद इंजन जो है ना, इंजन में इंजन के पार्ट्स वगैरह, उसमें ज्यादा अफेक्ट होने वाला है, क्योंकि 11.3%, 11.4% का एक्सपोर्ट इंजन का होता है सर इंडिया का यूएस को। हम्म। हम्म। और सर इसमें ये भी डेटा दिया है सर, हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो होता है सर ऑटो इंसिलरीज का, मैक्सिको का होता है 40.4%। आउट ऑफ सर 197.3 बिलियन डॉलर्स में से 41.2% तो मैक्सिको का होता है। हाँ। कनाडा का 9.9 एंड, यस सर। अच्छा, मतलब ये एक्सपोर्ट का यूएस की बात करें या ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो? जैसे यूएस यूएस अब मैं सर अच्छा। यूएस के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ सर। आज अच्छा, ओके। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का डेटा आया था, कि हम्म। उन्होंने बताया था कि कौन कौन सी कंट्री का क्या क्या शेयर है सर। ओके तो ओके। सर चाइना का सर 9.3% है, और प्रेजेंटली सर उसका टैरिफ सर 12.50% है, उसको इंक्रीज करके 37.5% से 62.5% तक टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं चाइना से। ओके, ठीक है, चलिए फिर। और इंडिया का सर टैरिफ, यस सर, नहीं नहीं, कुछ नहीं, सॉरी। इंडिया का टैरिफ सर 0 to 5% है सर ऑटो एंसिलरीज में, उसको इंक्रीज करके 30% पे लेके आ रहे हैं। पर इंडिया का सर एक बेनिफिट ये है कि सर 10% लेस प्राइस पे सर ये दे रहा है सर। तो यूएस मार्केट के लिए ये ज्यादा अट्रैक्टिव है, चाइना प्लस वन अदर पॉलिसी के लिए। और ओके इंडिया का जो शेयर है सर 1.6% का शेयर है सर ऑटो एंसिलरीज में, जो कि इंक्रीज हो सकता है सर अराउंड 2 to 3%, ओके बिकॉज ऑफ मोस्ट इफेक्टिव प्राइस, इसलिए। ओके। ये ये था सर एक। और ये भी था ना, और वो सर एक मैक्सिको का ज्यादा एफएमसीजी था, का। तो आई थिंक मैक्सिको का भी थोड़ा सर, बहुत यस सर। इंडिया तक आ जाएगा। आई एम नॉट श्योर कैसा हुआ, हाँ सर, क्योंकि मैक्सिको का लगाएंगे सर 25%, उसके बाद और हाँ। डिक्रीज हो जाएगा सर, मतलब इंडिया को थोड़ा बहुत शेयर मिलेगा सर 2 to 3%, तो इस वजह से सर। और सर इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि सर उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 125 to 150 बिप्स का ही अंतर आएगा, एक्सपोर्ट में ज्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा। और ओके जो मोस्ट अफेक्टेड है सर, वो मैंने बता ही दिया, इंजन्स के हैं। इंजन्स के पार्ट जो है वो मोस्ट अफेक्टेड है, क्योंकि 11.4% का शेयर है सर एक्सपोर्ट में। ओके ओके। Yes, sir। और सर एक एफएमसीजी में एक रिपोर्ट आया था आज के न्यूज़पेपर में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, हम्म। और कंतार एशिया पल्स रिपोर्ट के नाम पे। तो सर उन्होंने लास्ट 4 क्वार्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है बिटवीन किराना, सुपरमार्केट, क्विक कॉम, ऑनलाइन शॉपिंग, इस सब का। तो सर किराना का जो शेयर है सर क्वार्टर 4 में 81%, क्वार्टर 1 के कंपैरिजन में 79% हो गया सर, 2% डिक्रीज हुआ है। सुपर मार्केट इज एट द सेम लेवल 8%। क्विक कॉम का सर इंक्रीज हुआ है सर 2% to 3%। एंड केमिस्ट इज ऑट 2%। एंड नेटवर्क सर, नेटवर्क मार्केटिंग का इसमें 1% दिया है सर। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है सर इसमें? वो बी टू भी नहीं, वो जो बाकी के सोर्सेज से बेचते ना, कि जा जाके नेटवर्क तो वो मार्केटिंग, तो मतलब वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर ना, वाला हो गया एमवे ना और सर, वो इसके किराना में प्रोडक्ट। इंक्लूड नहीं होता। एमवे के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो सब कैसे बेचते हैं वो लोग, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप्स। यस सर, यस सर, वैसा हाँ। वैसा, हाँ, वैसा ओके कुछ ओके होगा। ओके। और सर टोटल ऑनलाइन शॉपिंग जो है सर, क्विक कॉम और ई कॉमर्स को मिला के हाँ। अराउंड 11% से 13%, 2% इंक्रीज हुआ है, जिसमें क्विक कॉम 1% इंक्रीज हुआ है सर। ये ये कहाँ पे था, एफई में था क्या? आज मेरा मिस हो गया एफई। एफई में था सर, पेज नंबर 5 में, या फिर हाँ सर 5 के आसपास है सर। अच्छा।
और सर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का सर वो बताएंगे सर, बाकी है इसलिए। अच्छा, Hi, ओके, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Yes, sir. Actually, the data regarding, आपका जो टू व्हीलर्स का एंड थ्री व्हीलर्स का ईवी साइड डेटा तो है, मतलब वो तो सब फैक्चुअली है। हाँ, एक्चुअली उसमें इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट क्या है ना, एक्चुअली इन Q3 एज वेल आई हैव विटनेस दैट द सेल्स ऑफ डीजल इंजन कार्स हैव बीन इंक्रीजिंगली, द विद इन द शेयर। आपका होंडाई मोटर्स में आप देखोगे ना, Q3 में द share of diesel cars have increased by 2.5%, and in Tata Motors the share has been increased by 5.5%. So the diesel car versus आपका EVs versus petrol. And अभी जो there is a data in FE Financial Express, they have given the data about EVs and petrol. So अभी मैं एक्चुअली वो उस पे बेसिस पे ड्राइव करे डीजल का, द डीजल इंजन vehicle sales growth in FY25 is nearly 8%, sir. So, कि clearly the peoples are, and the petrol growth is nearly 2%, sir. So the petrol growth, petrol bound vehicle sales growth has been declining and diesel are been increasing, and this can be the good sign for the Mahindra and Mahindra, because Mahindra and Mahindra has the largest portfolio of diesel engines, and because उनका डीजल में ही ज्यादा सेल है, एक तो उनका हाई एंड व्हीकल्स है, प्लस जो माइलेज है वो डीजल में ही ज्यादा है कंपेयर टू आपका पेट्रोल देखोगे, बिकॉज आप लेट्स से कि आप महिंद्रा 3X जो अभी नया आया है, उसका petrol average is nearly 10 to 11% only. So why people are preferring diesel engines comparative to petrol line. correct. And because this, going ongoing shift towards SUVs, there will be, strong demands for diesel engines going forward, I believe. Correct. Hemant, if you can Eh, connect the dots, what has Yeah. happened when you said ना that the diesel share has increased, हमने Yes, वो sir. डेटा भी देखा था, पता है M&M का मार्केट शेयर बढ़ गया है। Yes, sir. They have taken over Tata Motors as well. Yes, So sir. वो that is the reason है ना, M&M has entire portfolio is diesel, उसका हार्डली कोई पेट्रोल गाड़ी आता है। एक्चुअली तो पेट्रोल भी है, बट वो क्या है ना हार्डली सर, कोई आप है, देखो। कोई नहीं लेता, यस, हाँ, उसका पेट्रोल कोई यस, नहीं लेता महिंद्रा का। एज यू यस सर, करेक्टली सेड, वो 3X0 का माइलेज 10 है तो कोई नहीं लेता। पेट्रोल कार्स आर प्रेफर ऑफ मारुति ओनली, क्योंकि मारुति कम्स विद पेट्रोल एंड सीएनजी एंड उसका हाइब्रिड भी है। यस सर, यस सर, तो व्हेन इट एंड टाटा के भी मेजरली जो सेल्स हुए हैं, अगर अगर टॉप एंड में, तो दोज आर डीजल कार्स ओनली। हैरियर डजंट कम इन पेट्रोल, सफारी पेट्रोल में नहीं आती, यस सर। एंड वो नेक्स्ट वन देखोगे ना ईवी में। आप। यस सर, यस सर। सो आप वही मैं बोल रहा था एक्चुअली, जो आपका जो XUV 700 है, हाँ, उसका सेल मंथली सेल इज नियरली 8,000। एंड आपका जो हैरियर प्लस जो आपका टाटा सफारी है, हाँ, सेल इज कंबाइंड सेल इज अंडर 3,000, सर। अच्छा, यस सर। ये नहीं तो वही ये है, यस सर। तो वही है ना, यू हैव वी हैव ना, आई विल से वी हैव मिस द ट्रेन। हम जो डीजल का डिमांड दिया ना, वी आर बैक ऑन, मतलब 8% तो हो चुका है, एज यू सेड ना, पैसेंजर व्हीकल का 2% ही ग्रोथ हुआ है पेट्रोल यस का। सर, वी हैव एक्चुअली यस मिस द बस, कि सर। हमको ये बहुत एक्चुअली लेट पता चला है। मैंने ये Q3 का जब रिजल्ट आया था ना, एक्चुअली ये हाँ, मैंने आपसे शेयर भी बताता है, करा था, पता है तुमने, इसके लिए मुझे बट याद है वो, कि तुमने यस बोला सर, था कि महिंद्रा का शेयर बढ़ रहा है क्योंकि डीजल व्हीकल लोग ले रहे हैं, एंड ऑब्वियसली यस। प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। और आपका देखोगे ना, हुंडई का जो डीजल व्हीकल है इज ओनली आपका अल्कजार एंड क्रेटा, उन्होंने क्रेटा, वेन्यू हाँ, भी डीजल में डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो करेक्ट। विद जस्ट ओनली टू व्हीकल्स, दे देयर शेयर हैज बीन इंक्रीजिंग, क्रेटा में भी एंड अल्कजार में नियरली 2% का स्पाइक था सर उनका डीजल वेरिएंट में। तो वो भी एक अर्ली ट्रेंड था जो मिस हो गया एक्चुअली। करेगा वो, वही तो बोल रहा हूँ भैया, मिस द यस ट्रेंड। सर, कि यस टू सर, यू सी द महिंद्रा का स्टॉक, इट हैज इंक्रीज सो मच इन दिस डाउन मार्केट। आई डोंट नो यस कितना सर, अरे बढ़ा है वो। मोंटी भाई कहाँ थे तुम? यस कुछ सर, देखे ही नहीं। वो दिस डेटा ना हमको, मतलब अभी यू कैन नॉट मेक कि सर 8% से बढ़ा, तो इट इज गुड साइन, इट इज एक्चुअली वाज अ गुड साइन बिकॉज ऑफ महिंद्रा, ऐसा था। यस सर, तो अभी तो यू यस हैव टू लुक एट कि और क्या करेगा महिंद्रा अलग से, बिकॉज वो ट्रेंड तो आ गया है पूरा, मतलब दैट इज बिन, दैट इज व्हाई वी से ना कि मार्केट 1 ईयर फॉरवर्ड होते हैं। तो ये एक यस, साल फॉरवर्ड का था, जो वो लोग को, मतलब जो इन्वेस्टर्स थे, जो एनालिस्ट थे, उनको पहले ही पता चल गया कि दिस ट्रेंड इज चेंजिंग, एंड दिस ओनली हैपेंस व्हेन यू विजिट द शॉप्स, चैनल चेक्स करोगे तभी ये सब पता चलता है, वरना बैठे बैठे तो पता चल ही ना। क्योंकि एक बार अभी 8% आ गया, अभी तो यू कैन नॉट से
अरे एज एन एनालिस्ट कि सर नाउ इट इज अ गुड साइन क्योंकि महिंद्रा है उसमें. इफ यू नो द बैक एंड स्टोरी, वो महिंद्रा के वजह से हुआ है उतना. Yes. ऐसा है. And sir, वो भी like ना 2 to 3 session earlier we were discussing of like hybrid car. There is a growth coming हाँ. for hybrid vehicles. So there is a data, although that was a global data जो आपका US UK market से relation में, because USA is the biggest market for hybrid vehicles. So the dealers, there is some dealer का interview था actually जो multiple outlets hold करते हैं USA में. They have been saying that the footfall for this in a hybrid cars have been increased by threefold in last 1 year. And the average waiting time for this hybrid, plug-in hybrid and strong hybrid cars have been increased from 2 months to 5 months, sir. Yes, yes. Because Toyota is a major player for hybrid cars, for strong and plug-in hybrids. Yes, yes. So I believe ये ट्रेंड इंडिया में भी हो सकता है actually going forward. तो वो तो आई एम Because बेटिंग ऑन दैट. मेरे पास मारुति सिर्फ yes, sir. हाइब्रिड के लिए है. आई Yes, एम sir. बेटिंग ऑन And हाइब्रिड बिकॉज आई एम नॉट अ फैन ऑफ ईवीज. वो ईवीज मुझे yes. प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकली लगता है अभी तक मुझे. And sir, अगर गवर्नमेंट जैसे यूपी गवर्नमेंट हैज गिवन अ टैक्स रिबेट ऑन दिस हाइब्रिड कार्स, अगर धीरे धीरे और स्टेट्स भी अगर पुश करेंगे करेंगे. तो हाँ. इट विल बी ना बिग बूम फॉर दिस हाइब्रिड कार्स, because the EV sales is not picking clearly, although they are growing in a double digit, but it is very लो low बेस. base, sir. लो बेस है. 80,000 sales are it's piece, ये कुछ भी नहीं है compared 4 million markets of passenger vehicle. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. आई एग्री दैट. तो मतलब आई विल से ना व्हाई आई एम बुलिश ऑन मारुति. See, I don't know the fundamentals. मुझे ना उसका valuation पता है क्या है. I am just waiting for that demand to pick up in hybrid because I am a big fan of hybrid. Because if I want to buy a next car, it will be a hybrid car. Obviously, I'm not a fan of because मेरा इतना traveling नहीं होता है कि मैं डीजल करूँ. डीजल का and obviously it has higher maintenance cost as well. And if I want to Yes, buy sir. a sedan or maybe a mid-size SUV, तो why would I go for a diesel car? If you know डीजल कार का एक प्रॉब्लम है. डीजल कार के क्लच बहुत हार्ड होते हैं. Yes, sir. मतलब if you drive in cities, diesel car is not to drive in cities. If you like driving on the highways, तो ही diesel car आप prefer. And उसका वो अभी ठीक है, अभी automatic आ चुके हैं. That's a different thing. But if you want to talk about manual cars, still diesel is not a city friendly car. Yes, sir. Second, Maruti is the only player currently into EVs. Toyota है, but Toyota and Maruti are collaborated. If you see now, Honda has commented in its report somewhere in the news that they will also bring hybrid cars to India with EVs. Yes, Also bring hybrid cars. So Honda is like the second major player, and वो लोग ने ऐसा क्यों बोला है? Obviously there is a reason that they have said that. Maruti is already there, so first mover advantage हम पहले बोले Tata Motors को है. It was a waste because EV was I will say it was a R&D. Still it is R&D. But what is that's the next phase of growth for Maruti will be the strong hybrid and the mild hybrid cars. yes, You see sir. इनका lined up है ना. Fronx is in the lined up. Wagoner is also in the lined up for hybrids. Yes, sir. Strongs तो है. My Wagoner का actually I don't Wagoner भी know. है. It's in lined. Okay. Sorry, Wagoner नहीं, Swift. Yeah. Okay. They are also talking about Swift to become strong hybrid, not even mild. It's strong hybrid. Neil is saying still I don't understand why you think EV segment won't really work in India. There's been such a huge growth in EV vehicle models. Where is the growth? The numbers are not showing. 7% growth is not a growth. How much was the growth? EVs? So in passenger vehicle. Passenger vehicles. Okay. So in passenger vehicle, it is. एक second. So in passenger vehicle, the growth is nearly 17%, sir. 17. Yeah, 17. Neil, if it is on the low base, if you talk about the entire auto industry, hardly EV contributes hardly 1% to the industry. Under 2%, sir. Under 2%. So yes. Overall it is, sir, around 2 lakh. Volume is 2 lakh, which is 2 lakh था, 1 increased. लाख था ना. Yes, sir. हमने देखा था Sir, 1 लाख था. So 1.95 lakhs, sir. Electric vehicles. 1.95 है. हाँ, इधर लिखा है. 1 लाख शायद हमने लास्ट टाइम देखा था, आई थिंक मिड ईयर में. वो सर Yes, कैलेंडर sir. ईयर और का सर था. ये Calendar year का, YOY हाँ. 16% increase हुआ है, sir. Correct. तो if you look at the recent trend, पता है क्या हुआ है? टाटा मोटर्स का सेल्स डिक्लाइन हो गया है. MG का बढ़ गया है.
Tata Motors has lost market share to MG. So there is EV now. Creta will come in. EV Tara will come in. That E-Creta will come in. Honda, Mahindra is already into launches of that BEV. तो looks impractical मुझे तो. सर मैं प्लस खुद ना लूं. अभी आप देखोगे ना, सो ड्यू टू दिस हाइब्रिड बूम आप देखोगे दो किया मोटर्स विच यूजुअली द फोर्थ big play fifth big player in terms of dispatches to Taylor's touch point. So in this year the Toyota has overtaken sir आपका Kia, and the हाँ. difference is nearly 60,000 units sir. अच्छा. Yes sir, till February I am saying till February. Okay. सो अभी मार्च में तो वैसे भी डिस्पैचेस कम होंगे, बिकॉज वो इशू रहता है कि FY 24 का 25 का डिस्पैच है अप्रैल से, हाँ. मतलब वो भी एक प्रॉब्लम होगा, तो अनलाइकली है कि दे विल बी एबल टू ओवरटेक, सो द गैप वुड बी 50 to 55,000 for in this FY 25 only. Correct. Correct. Because in Delhi NCR region, हम्म. hybrid vehicles are preferred. Toyota's hybrid vehicles are preferred compared हाँ. to Maruti आपका. Even I was buying a car, so at that time एक thought आया कि let's buy an hybrid. When I was talking about electric vehicles ना, Yes. I was planning to buy an electric. तो Tata Motors का the Nexon was already going at something like 19-20 lakhs. So वो Nexon लेने से अच्छा I would better buy a 19 lakh Grand Vitara EV या maybe a Creta. But Creta के Yes. पास ये नहीं था, hybrid नहीं था. So I would have talked about this ग्रैंड में एक बार आया था मेरे, बट सिंस मेरा वो जरूरत नहीं था उतना. बट इफ आई वांट टू ट्रैवल मुंबई पुणे अ लॉट, आई विल रादर प्रेफर अ मारुति जो सस्ता भी है, ओके, एंड स्ट्रांग भी है ना. इट गिव्स 20 Ye- का माइलेज देता है हाईवे पे आराम से. Yes, sir. Yes, sir. So कंपनी तो कमेंट कर रहा है एक्चुअली, वन टैंक डिलीवर्स 1400 किलोमीटर्स हाँ. वो रेंज. हैदराबाद, इफ आई गो ना, देयर इज अ बिग पोस्टर ओवर देयर फ्रॉम अहमदाबाद टू हैदराबाद इन वन टैंक. यस सर, वो आप अभी न्यूज जो IPL चल रहा है ना उसमें भी न्यूज पे आता है, ग्रैंड विटारा स्ट्रोक अच्छा ना. हाइब्रिड वाला तो 1400+ किलोमीटर रेंज. तो वो एक दैट इज अ रीजन दैट आई लाइक मारुति. बट हाँ, ऑब्वियसली इट इज अभी तक तो छोटा है उसके पूरे पोर्टफोलियो में. द द उनका हैचबैक शुड ग्रो. तो उसके लिए भी हैव टू वेट कि हैचबैक कब होगा. अभी सर अगर टोयोटा का अगर ब्रेकअप है नहीं वैसे, पर टोयोटा में जो कंट्रीब्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वुड बी ग्रेटर कंपेयर टू मारुति आपका, बिकॉज टोयोटा में जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कम्स इन कैमरे एज वेल, एंड उसका आपका आप देखोगे इनोवा हाई क्रॉस में भी हाई स्ट्रॉन्ग क्रॉस भी हाइब्रिड है, हाँ. देते हैं. बट एंड इनोवा उन ये भी बेच रहा है ना, मारुति भी तो बेच रहा है इनोवा. पर सर उसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है सर, हाई राइडर जो इनोवा इन्विक्टो बेच रहा है जो हाँ. मारुति, हाँ. उसमें अभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लॉन्च नहीं है, वो इस ईयर लॉन्च होगा. नहीं है ना, अच्छा माइल्ड हाइब्रिड है, सॉरी. हाँ. यस, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है सर उसमें. आशीष, सर, EV growth will remain long term story. See, all these things that you talk on back of zero knowledge about what is going on the क्या बोलते हैं जो things that are going on the real life में. You just talk about EV growth. You don't have the numbers. You don't know what is happening on shore. क्या हो रहा है मार्केट में. तुम पर्सनली खुद ईवी नहीं लेते एंड यू वांट टू टॉक अबाउट बाइंग एन ईवी. तो दिस इज माय पर्सनल व्यू कि मैं पर्सनली मुझे वो ईवी इतना अन इट लुक्स लाइक इट इज ऑफ नो यूज फॉर मी. मतलब मेरे जैसे से कितने लोग हैं कि को कुछ काम का ही नहीं है वो. ईवी का यूज क्या है अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर ट्रेवल्स. मुझे बताओ, डू यू हैव द डेटा कि कितने लोग ईवी लेते हैं एंड इट इज देयर फर्स्ट कार. फर्स्ट टाइम बायर्स आर 40% इन इंडिया. 40% फर्स्ट टाइम बायर्स. एंड जो सेकंड ओनर्स है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ईवीज है. पूरे इसमें है 2 लाख रुपए है. यू गो एंड आस्क तुम्हारे बिल्डिंग में कितने ईवीज है. जस्ट गो एंड वॉच. एंड तुमको लगता है कि लोग ईवी लेंगे. गो एंड आस्क टू पीपल अराउंड. आई हैव डन दैट कि लोग मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स, आस्क देम इफ दे वांट टू बाय अ कार, इज ईवी द फर्स्ट चॉइस. किसी का भी नहीं होगा. एंड तुम मुझे बता, तुम्हारे से कितने दोस्त हैं जिनको ना मुझे ईवी ही लेना है. यू डोंट हैव द सर ग्राउंड रिसर्च. सर आज आज नहीं है, लेकिन आप अगर देखोगे अभी सर आज की न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट मतलब जो इनिशिएटिव है फॉर ईवीज उसका भी एक आर्टिकल है सर. वो तो इसके सर इलेक्ट्रिक बसेस पे था ना.
इलेक्ट्रिक बसेस नहीं सर, इलेक्ट्रिक ये सर क्या बोलते हैं, चार्जिंग स्टेशंस पे भी है सर। हाँ सर जो कि वो लोग पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, और सर ई ट्रक्स जो है उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या बोलते हैं पुश कर रहा है। और ऊपर से सर जो लोग ई सुपर जो फास्ट चार्जिंग स्टेशंस है, ईवी चार्जिंग स्टेशंस, सर जो लोग प्राइवेटली सेटअप करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर उसको 80% सब्सिडी वगैरह भी दे रही है। सर आई फील, अब जैसे सर मारुति का ग्रोथ स्टोरी सर, अभी हम आज बात कर रहे हैं कि ईवी सर कैसे, मतलब कितने लोग ले रहे हैं या क्या परसेंटेज, इट्स लेस देन 2% आज है सर। इसीलिए सर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। बट जैसे सर मैंने बोला, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी, वो ग्रोथ स्टोरी हो कितना सकता लॉन्ग है सर। टर्म? 10 साल, 20 साल, 50 साल? सर मे बी नेक्स्ट 10 years वुड बी अ 10 थिंग, ईयर्स बिकॉज 10 ईयर्स में दुनिया इधर की इधर हो जाएगी। हाइड्रोजन गाड़ी आ जाएगी 10 साल में। इतना बड़ा व्यू है कल का, पता है तुमको कल क्या होने वाला लाइफ में तुम्हारे? 10 साल का व्यू ले रहे हो तुम? सर नहीं नहीं है, लेकिन सर अब मैं इस पॉइंट से, मतलब सर अभी जैसे ईवी कार्स है सर, ये पोस्ट कोविड सर इतना ज्यादा पुश हुआ है। इट्स barely 4 years मैं बोलूंगा, मतलब सर ठीक है। 2020 अगर ईयर छोड़ दो तो 21, 22, 23, 24, सर 4 साढ़े 4 साल में सर 2% मार्केट शेयर, इतने बड़े मार्केट का, जिसमें सर कार्स हैव बीन देयर हाँ। फ्रॉम लास्ट मे बी 100 years। हम्म। तो सर अगर जो पेट्रोल डीजल कार्स है सर, ये इतने सालों से है, इसीलिए सर आज इनके इतने मॉडल्स है, मार्केट शेयर है, सब कुछ है। लेकिन सर 4 साल में, पिछले 4 साल में इतने बड़े मार्केट का लेस देन 2% भी कवर करना इज बिग थिंग। हम्म। एंड इन कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे सर गवर्नमेंट किसी चीज को इतना पुश कर रही है सर, जैसे अभी रिसेंट ये जो आर्टिकल है आज ही के न्यूज़पेपर में, आई थिंक सो बिजनेस स्टैंडर्ड में, हम्म। सर कल आई थिंक सो अंजल ने भी बोला था कि ये ईवी चार्जिंग का सर ग्रोथ बहुत अच्छा है सर। अभी पीएम ईवी ड्राइव में सर 2,000 करोड़ ईवी चार्जिंग स्टेशन के इंस्टॉलेशन के लिए सर गवर्नमेंट ने ये अलोकेट किया है। ऊपर से सर करंटली 32,500 स्टेशन है। लेकिन बाय FY 26, मतलब ये साल में, इन नेक्स्ट 1 year सर, इंडिया के सर ये आया है ग्रोथ में कि 72,300 ईवी स्टेशन मतलब सेटअप करना है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट मोर देन डबल सर। तुमको पता है एक ईवी चार्ज करने को 2 घंटा लगता है? हाँ सर, लेकिन सर अभी ये जो नया ये आया है सर इसमें सुपर सर फास्ट। हम्म। फास्ट चार्जिंग वाला भी है, डीसी जो हाँ मैं बता रहा था फास्ट आपको, तो चार्जिंग की उसमें बात कर रहा हूँ मैं। यस सर, तो वो 30 to 60 मिनट्स में हो तो रहा है तो उसमें। वही, एक सेकेंड, इफ यू नो द मैकेनिज्म ना, जाके ना जरा वो मार्केट में जाके पूछ के आओ गाड़ी का क्या होता है। इफ यू चार्ज डीसी ऑन अ रेगुलर बेसिस, हम्म। तुम्हारे बैटरी की लाइफ 8 साल से सीधा 5 साल हो जाती है। नहीं पता हाँ, होगा तो मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, पता है पता है। इफ यू चार्ज ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम योर फास्ट चार्जिंग, तुम्हारे हम्म। ईवी की बैटरी उड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये मुझे टाटा मोटर्स के खुद मैनेजमेंट ने बोला है। तुम बोल रहे हो कि फास्ट चार्जिंग हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इट इज नॉट। फास्ट चार्जिंग से 1 टाइम 2 टाइम के लिए रोज तुम फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकते। ये सर किसी को नहीं पता है, तुम सिर्फ वो न्यूज पढ़ते हो ना। दैट इज वाई ग्राउंड रिसर्च इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन सर सर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल रोज भी तो नहीं डेली होता है सर। वही। मतलब अगर आप देखोगे, अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है हाँ। तो ये सर एक एक चार्ज में हो सकता है। दिस इज barely थ्री नहीं होता हंड्रेड है, वही मैं बोल किलोमीटर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तभी तो मैंने किया, नहीं होता है। इट वो ओनली सिर्फ गोज टू व्हीलर के 200 सेगमेंट में। किलोमीटर्स। इट ओनली गोज सर 200 किलोमीटर्स ईवी। एंड हाईवे पे अगर तुम चलाते हो तो हाईवे पे और माइलेज कम होता है, बिकॉज तुम ब्रेकिंग कम होती है हाईवे पे, रिचार्जिंग नहीं होता। तो ईवीज एज ऑफ नाउ आर ओनली फॉर सिटी यूज। एंड मुझे बताओ ऐसे सिटी यूज में ऐसे कितने लोग हैं? यू जस्ट मेक अ कैलकुलेशन ना, तुमने किया, अगर तुम मैथ समझते हो, तुम एक ईवी नेक्सॉन ईवी को यू गिव 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा। आई विल शो यू बेसिक कैलकुलेशन को। अगर ये पता नहीं, दिस इज अ मैथ्स दैट यू नीड टू कैलकुलेट एज एन एनालिस्ट भी, कि जब कोई चीजें आती है तुमको पता था, तो ऐसा नहीं होता कि लोग बोल रहे हैं इसके लिए हो रहा है, इनिशिएटिव हो रहा है। इनिशिएटिव तो सोलर का भी हुआ था इतने सालों पहले, क्या हुआ अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है? तुम्हारे घर पे आता है सोलर एनर्जी? विंड एनर्जी भी हुआ था, ग्रीन एनर्जी की अपना बात कर रहे हैं, अदानी ग्रीन, क्या हुआ? आ रहा है तुम्हारे घर पे? आई शो यू, आई डू दिस मैच, ये मैंने सब किया इसके लिए बोल रहा हूँ। नेक्सॉन, नॉर्मल नेक्सॉन कम्स एट 10 लाख, 10-12 लाख की आती है एक एवरेज। ठीक है। उसके साथ तुम्हारी साथ में आती है 15 लाख, 9 लाख की, सॉरी 19 lakhs की तुम्हारी जो ईवी का है वेरिएंट, वो आता है, जाके देख लेना इफ यू डोंट नो। तो आई हैव अ डिफरेंस ऑफ 7 lakhs। व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन इंडिया? 100 रुपया।
104. Yes, sir. 100 ले लेते हैं। 104. 7,000 रुपया, 7,000 किलोमीटर तुम चलोगे, करेक्ट? 7,000 किलोमीटर तुम, and that car, this EV car only runs for 8 years. Only runs for 8 years. तो साल में 1,000 किलोमीटर इज व्हाट यू ड्राइव, इतना तुमको तो ऑलरेडी फायदा हो चुका है तुमको। मतलब अगर तुम 1,000 किलोमीटर साल का चलाते हो तुम्हारा गाड़ी, उसके ऊपर जाते तो ही तुम्हारा फायदा है, और साल का 1,000, ठीक है? तो अपन साल में 1,000, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो 1,000 किलोमीटर चलाता है गाड़ी साल का? मतलब साल का 1,000 मतलब दिन का 80 किलोमीटर। कौन चलाता है इतना 80 किलोमीटर गाड़ी दिन का? टेल मी। सर डिवाइड बाय 365 सर। अरे 12 किया ना? नहीं सर, ये महीने वो का महीने का 1,000 आ गया सर। तो साल का था ना 895, 875। यस। अरे महीने का, चल ठीक, महीने का 30 करो, ठीक है? सॉरी, नहीं, दिस वाज साल का ना 875, नहीं 8 साल का नहीं था, 875। तो इतना तुमको फायदा होगा, 875 का सिर्फ है, तो मैं बोल रहा हूँ 875 पूरे साल में, सॉरी 365 का था, ठीक है, ओके। अरे तो डू आया, सर 2 किलोमीटर बेसिकली. नहीं एक सेकंड, did some wrong maths, 7 lakhs is what, हाँ। सर तो इतना उतना लीटर, नहीं नहीं, इतना तुमको लीटर ये में आया, 7,000 लीटर तो तुमको फ्री आया, मैं बोल रहा हूँ। यस 7,000 लीटर फ्री है। कितना पेट्रोल का कितना माइलेज देती है गाड़ी? 12 किलोमीटर, 10 से 12, यस सर 10 to 12। 7,000 लीटर में यू कैन ट्रैवल 84,000 किलोमीटर। उतने जो तुम एडिशनल भर रहे हो ना, तुम्हारा गाड़ी या कितना लीटर चलता है? एक गाड़ी तुम्हारा पर्सनल गाड़ी कितना चलता है? इतना चलता है 84,000। बताओ मुझे, सिंपल मैथ से ये 10 का माइलेज पकड़ा है, फिर भी मैं मारुति जैसे हाइब्रिड तो 12 20 का माइलेज देती है। यू टेल मी नाउ व्हाट इज सेंसिबल इनफ? ये ईवी लेना इतना सेंसिबल है? कैलकुलेशन है, मैं बता, अभी तुम मुझे कन्विंस करो कि सर दिस इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन। क्या करे, वापस करता हूं मैं। आई हैव पेड 7 लाख रुपीज एक्स्ट्रा, करेक्ट, फॉर द सेम मॉडल जो नेक्सॉन ईवी का आता है। 7 लाख में अगर मैं पेट्रोल पकड़ू, इंडिया में 100 रुपया है, तो मुझे 7,000 लीटर तो मुझे वो 5-7 लाख में आता था। और 7,000 लीटर में आई ट्रैवल, मतलब मेरा गाड़ी पेट्रोल का गाड़ी 12 किलोमीटर के हिसाब से था, तो 84,000 किलोमीटर से मुझे ऐसे ही फायदा हो रहा है। मैंने मेरे 4 गाड़ियां 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलाई है, और 84,000 किलोमीटर कौन लेती इतना? कौन सा मेरे को बताओ, तुम्हारे भी घर पे गाड़ी होगी, बताओ कितने किलोमीटर चले? 84,000 हम कितना गाड़ी चलाते हैं? 8 साल चलाते हैं, 5 ही साल चलाते हैं, इनफैक्ट चलो 8 साल पकड़ लेते हैं, स्टिल 10,000 किलोमीटर साल का फ्री है। अब बताओ अभी, इज इट वर्थ टेकिंग एन ईवी? एंड सर इसका एड ऑन एक और है कि इन इंडिया पहले बाय करने से पहले वी चेक अबाउट द उसका रीसेल वैल्यू कितना, एंड हाँ, ईवी उनका जीरो, रीसेल वैल्यू है ही नहीं। है ही अभी नहीं, मतलब जीरो। डिटरमाइन ही नहीं कर सकते आप हाँ, ईवी का कंपेयर टू कितना यूज हुआ है बैटरी, कैसा करेक्ट, हाँ टेक्नोलॉजी होगा हाँ, ये वो तो भूल ही मतलब गया मैं, हाँ वो वो रीसेल वाले सब तो भूल ही गया, मेन। गाड़ी बिकॉज का आप रीसेल वाले। मारुति का सेल क्यों होता है, पीपल कंसर्न अबाउट उसका रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा होता है। लाइक क्रेटा का भी आप देखोगे सबसे अच्छा इनका रीसेल वैल्यू है, तो ईवी का तो रीसेल वैल्यू भी नहीं है करंटली। करेक्ट, और वो मैकेनिज्म कैसे डेवलप होगा अबाउट कितना कितना यूसेज हुआ होगा? है बैटरी, कैसे डीसी पे चार्ज हुआ है, कितनी जल्दी ड्रेन होने वाला है उसका ट्रेन वाला बैटरी, वो भी तो एक प्रॉब्लम है सर उसमें एंड काफी ओवर बड़ा। द इयर्स वो बोलते हैं कि उसका वो लाइफ कम होता है बैटरी, मतलब जो किलोमीटर्स होते हैं ना, 300 किलोमीटर बोलते हैं, तो वो कम हो जाता है ओवर द, क्योंकि बैटरी का लाइफ खराब खत्म होने लगता है, यू हैव टू चेंज द बैटरी इन एवरी 8 ईयर्स। तो मुझे बताओ, ये 8 साल भी मैं पकड़ू, तो भी 10,000 किलोमीटर तो मैं अभी अप फ्रंट पैसा बढ़ रहा है। वो 7 लाख में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ तो अप फ्रंट वो भी तो बढ़ते रहेगा, प्लस रीसेल वैल्यू। मतलब मुझे बताओ कौन से सन में तुम बोल रहे ईवी का ग्रोथ है? इट इज नॉट इवन। तो कौन सा ईवी का ग्रोथ है पता है? वो 500 किलोमीटर चल रहे हैं ना मर्सिडीज वाले, या तुम्हारे ना हाई एंड वाले, वो फिर भी एक टाइम पे, क्योंकि वो लग्जरी है कि चलो 1 करोड़ में तुमको कुछ तो मिल रहा है, और नेक्सॉन लेके क्या करने वाले हो तुम? लग्जरी भी नहीं है वो तो। 19 लाख में मैं बैठू तो मेरे पीछे कोई बैठ नहीं सकता है, बिकॉज आई एम 6'2", तो मेरे पीछे कोई बैठ ही नहीं सकता अगर मेरी हाइट का होगा तो, लाइक दैट।
सो ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, तुम जो बात करते हो ना, बिकॉज दैट इज द रीजन यू डोंट गो ऑन ऑन शोर एंड चेक कि क्या है कैलकुलेशन। ये तो सिंपल कैलकुलेट किया, अभी तो मैंने और लिखा ही नहीं है। तुम बोलोगे सर फिर इसका मेंटेनेंस कॉस्ट 0 होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, हो ओके 10,000 किलोमीटर, फिर भी यू हैव नो आई विल से बैक ऑफ द माइंड की 10,000 किलोमीटर तो चलनी ही नहीं वाली मेरी गाड़ी। मैं कितना भी मुंबई पुणे कर लूँ, मैं इतना तो मैं चलाने वाला हूँ नहीं गाड़ी। एंड मुझे बताओ सिटी में कौन चलाता है इतना, कौन से चलाता है पता है? आई विल टेल यू, वो जो फ्लीट मार्केट फ्लीट वाले होते हैं ना, वही चलाते हैं। फ्लीट सर है वही सर चलाता आप करेक्ट सर, ये सर यूजर बेस पे देखे तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। है। सर जैसे आपने अभी यू आंसर दिस कि फ्लीट वाले हैं तो वो चलाते हैं, वही है हाँ। तो सर अपने को तो कंपनी पर्सपेक्टिव से देखना है कि सर फ्लीट वाले चलाए, बसेस वाले चलाए, कॉर्पोरेट सर जो अ, अ, घर पे से सर मतलब पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करते हम्म हैं वो वाली सर्विस चलाए। सर सेल्स बढ़ने से मतलब है, लाइक फॉर एग्जांपल सर मैकडोनल्ड्स है सर, उसका कितना बर्गर परसेंट? सर कितना परसेंटेज परसेंट? तो सर सेल्स में सर जिस नहीं नहीं, इफ यू नो, टेल मी लेस आउट देन ऑफ द एंटायर इंडियन मार्केट जो 20 लाख गाड़ियां बिकती है उसमें से फ्लीट के कितने होते हैं? सर मे बी अराउंड, जो मैंने लास्ट रीड किया था सर उसमें 4.5 से 5.5-6% के बीच में सर हम्म फ्लीट है। तो 6% का पोर्टफोलियो तुम्हारा अगर 10% 50 तक से भी ग्रो हुआ तो तुम्हारे बॉटम लाइन पे क्या फायदा होने वाला है? सर ये जो 1% मार्केट शेयर है, लेस देन 2% मार्केट शेयर, हम्म सर वो तो बढ़ जाएगा सर। अरे तो वो तो तुम चार बताओ, परसेंट एक हंड्रेड सेकेंड एक परसेंट सेकेंड, तुम्हारे पास एक स्टॉक है, लेट्स से मारुति का स्टॉक है, जो तुम्हें 10 लाख रुपए में 9 लाख रुपए मारुति है, और 50,000 रुपए टाटा मोटर्स है, ठीक है? टाटा मोटर्स डबल हो गया, ठीक है, डबल से ग्रो हुआ, कितना फायदा हुआ तुम्हारा? 50,000 का, करेक्ट? यस। मारुति एक 10% भी बढ़ा तो कितना ग्रोथ हुआ? 90,000 का। तो क्या करोगे वो 50,000 लेके? तो तुमको ओवरऑल में ग्रोथ चाहिए, डबल भी हो रहा तो भी 50,000 ही कमा रहे हो तुम। सॉरी 50% हो तो भी इट इज नॉट डबल, 50 का 75 होता है, 25,000 रुपया कमा रहे हो उससे सिर्फ डबल ग्रोथ पे। बॉटम लाइन तुम्हारा बढ़ ही नहीं रहा ना, तुम बोलोगे क्या सर मेरा टाटा मोटर्स डबल हो गया, क्या फायदा? कमा तो 50,000 रहे हो तुम, मारुति डबल होना चाहिए ना। वो फिर कितना भी छोटा पोर्टफोलियो, 10, मैं तो 10% पकड़ रहा हूँ, वो तो 10% भी नहीं है, 5 तक का है वो तो पूरे पोर्टफोलियो का। एंड तुम बोल रहे एक का दो होगा वो, 1% है, सॉरी नॉट इवन 5। मतलब तुम्हारे पास 10 लाख के पोर्टफोलियो में सिर्फ 10,000 के टाटा मोटर्स है, यू आर सेइंग कि सर मेरा टाटा मोटर स्टॉक डबल हो गया, तो मैं क्या करूँ अभी? उनको कुछ फर्क पड़ने लगा तुम्हारी जिंदगी में 10,000 रुपए से? नहीं करेक्ट, तो ये बात है, बॉटम लाइन इज नॉट इम्पैक्ट, वही टाटा मोटर्स के साथ हुआ है। हम ईवी ईवी बात करते हैं, ईवी का ग्रोथ है, डबल हो रहा है उसका ग्रोथ, उसके बॉटम लाइन में हार्डली इंपैक्ट होता है उसका, 1% का भी नहीं है प्रॉफिट। तो इस ईवी स्टोरी का ये कैलकुलेशन मैंने सिंपल किया था, फिर मैंने उस दिन मेरे टाटा मोटर्स सब बेच दिए, नहीं चाहिए ही नहीं मेरे को टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स लेना है तो आई विल नॉट ट्रैक ईवी, आई विल ट्रैक द जैगवार या लैंड रोवर, उसमें क्या हो रहा है। नहीं सर, माय माय पॉइंट वाज नॉट फॉर ईवी कार जैसे टाटा मोटर्स है सर, तो सर हम्म, इसका तो सर स्टॉक प्राइस भी सर इतना मतलब 50% गिर चुका है, 1100 का है मार्केट, हाँ वो तो बॉटमिंग जेएलआर में के वजह से गिरा है, 650। तो तो सर जेएलआर की। यस, तो सर इसमें द पॉइंट इज कि द कंप्लीट स्ट्रक्चर सर, एक पूरा इकोसिस्टम जो ईवी का सर, कहीं ना कहीं वहां पे जैसे सर टाटा पावर है, या सर जो बैकएंड सर जैसे टाटा एलेक्सी जो था एक टाइम पे, हम्म इट वाज वेरी स्मॉल कंपनी सर, लेकिन पोस्ट कोविड सर वहां पे जो वो ईवी सेगमेंट में उसका हाँ सॉफ्टवेयर इसमें सर चला है, तो इट हैज गिवन मैसिव रिटर्न्स। करेक्ट करेक्ट, तो नाउ यू आर सर ऑन द पॉइंट। मेरा मतलब इट्स नॉट जस्ट फॉर ईवी कार सर, बट एवरीथिंग रिगार्डिंग द कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो पूरा साइकिल है सर, जैसे टायर से लेके तो हर चीज जो लगती है ईवी करेक्ट में जो करेक्ट स्पेशलाइज करता है, करेक्ट। दैट उसमें सर जो छोटी कंपनी जो स्पेसिफिकली उसमें काम कर रहा है और उसमें ग्रोथ ले सकता है हाँ हाँ हाँ, हो सर, सकता है, वो हो उस पे सकता है। फोकस कर सकते हैं। दैट्स करेक्ट व्हाट है, माय तो वो पॉइंट वाज तो सर। कल भी तो हमने वही बोला ना, वायर्स एंड केबल्स की ईवी पे ही बोला ना, घूम फिर के मैं ईवी पे ही आया था, कि हाँ गाड़ी सर। का तो छोड़ो, वो पर वायर्स एंड केबल्स में भी उधर वो एक एडिशनल सेगमेंट बढ़ेगा। सो दिस इज हाउ नो, तो ये यू आर राइट, सो दिस इज राइट, इफ यू डोंट टॉक अबाउट ईवीज, टॉक अबाउट द वन हु आर सप्लाइंग देम। तो वो तो है ही, तो वो तो ऑटो कंपोनेंट्स तो है ही उसमें। हाँ, तो इफ यू आर टॉकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, तो फिर ईवी ट्रैक करो।
डोंट से कि उसको टाटा मोटर्स और मारुति को कुछ फायदा होने वाला है। वो सिर्फ वैसे ही ओके है कि सर। मारुति भी क्यों आ रहा है, जस्ट टू नॉट नॉट बी बिहाइंड अदर प्लेयर, इसके लिए आ रहा है बस, और कुछ नहीं। होंडा तो ने भी सर अभी निकाली है मिड उसके, वो तो सब लग्जरी में निकल रहा था, मिड में तो अभी निकल रहा है वो। थिंक होंडा की भी कोई सस्ती भी नहीं आती ना। यस सर। सर अभी वो लाए सर, अभी जैसे आपने बोला मारुति आएगी, Hyundai की अभी जो सर पहले नहीं आती थी अभी आएगी, तो सर इनको भी तो कंपोनेंट्स लगेंगे ईवी हाँ के। हाँ हाँ, तो वो है, वो तो तो हाँ, वो ट्रैक करो फिर कौन ईवी बनाता है, ईवी पार्ट्स बनाता है। एंड स्टार्ट्स विद वायर्स एंड केबल्स होते हैं उसमें, काफी वायर्स एंड केबल्स काफी होते हैं उसमें, कि सब इलेक्ट्रिक पे चलता है। यस तो यस वो सर। उसके कंपोनेंट्स कौन बनाने वाले हैं, फिर इलेक्ट्रिक के पार्ट्स भी अलग होते हैं। आई थिंक यू डोंट यूज द मेटल पार्ट, तुम प्लास्टिक पार्ट यूज करते हो, या कोई अलग, आई डोंट नो हाउ इट इज मेड। सर अगर बैटरी वो है। अगर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो हाँ चार्जिंग स्टेशन तो भी सर उसी का पार्ट है। लाइक अगर चार्जिंग हाँ स्टेशन ही नहीं होगा तो ईवी लॉन्च करके क्या होगी। तो सर मैं कल वही डेटा प्रेजेंट कर रहा था कि जो कंपनीज हैं, हाँ लाइक जितने भी कंपनीज हैं वो हाँ सब अपने फंड्स लाइक एलोकेट कर रहे हैं ये क्या बोलते हैं चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए। और जो अच्छा टाटा मोटर्स है हाँ उन्होंने, सॉरी टाटा पावर, वो टाटा मोटर्स से एमओयू किया है साइन कि लाइक जो उनका 1000 नहीं कुछ तो यूनिट का लिखा हुआ था कि हाँ इतने उनका चार्जिंग स्टेशन है, वो अगले साल डबल कर देंगे। तो अच्छा। वो पॉइंट बोलना चाहता हाँ था। तो वो है कि तो देखा कि उसके एंसिलरीज कौन है, चार्जिंग को क्या क्या लगता है। बट वो यस। क्या हो जाता है ना अंजल, डिफिकल्ट हो जाए ट्रैक करना, कोई पूछे ना तुमको ये कितने का केबल आता है, कौन सा केबल लगता है, क्या क्या लगता है चार्जिंग स्टेशन में ना बनाने को। तो वो काफी कॉम्प्लिकेट, मतलब नॉर्मल आदमी को नहीं पता होगा, तुम जाके रिसर्च करोगे तो पता चलेगा क्या है। जैसे कोई पूछ लिया बता चार्जिंग में कौन से केबल लगते हैं, कौन से वोल्ट के केबल लगते हैं, फिर और क्या क्या लगता है, कितना होता है, बड़ा बड़ा होता है, छोटा होता है, कौन बनाते हैं सब केबल्स। जैसे हम कल जैसा डेटा इतने सारे लोग बनाते हैं केबल्स, तो उसमें से कौन सा इसको यूज होने वाला है। अभी अदानी बोलते हैं अदानी करने वाला, तो अदानी के तो खुद का केबल का है, तो बाकी के केबल्स का क्यों बढ़ेगा, कंपोनेंट्स का, तो ये सब चीजें भी आ जाती है उसमें। तो इसके लिए फिर ये सब कंपनीज क्या है, यू शुड नॉट टेक एज अ प्राइमरी रिसर्च, यू कैन टेक इट एज अ सेकेंडरी रिसर्च, कि कभी किसी ने कुछ बोला तो हाँ पता है हमको। हाँ इसके लिए बोला था हाँ सर। इसके लिए वही, कभी किसी ने बोला कि इंटरव्यू में ये सब नहीं बात करनी, इंटरव्यू में ये सब बात करोगे तो तुमको फिर वो अलग और 100 चीजें अलग पूछेगा नहीं इंटरव्यू अननेसेसरीली। इंटरव्यू में वो पूछा कि कोई और सेक्टर है, मैंने सीधा ना बोला। मतलब हाँ वो फालतू का जाके फिर उधर क्वेश्चन पूछेगा इसके हाँ लिए। हाँ, नहीं बोलने का, कोई बेसिक वाला ना, इजी वाला सेक्टर बोल देने का कि एफएमजीजी होगा ना, एफएमजीजी ऑटो है, ऐसे ट्रैक करता हूँ मैं। तुमने क्या बोला, तुमने ब्लू ये बोला था ना, ब्लू स्टार बोला था ना। यस सर मैं। एफएमजीजी ऑटो ट्रैक बोलने का, मैं ट्रैक करता हूँ, ये हो रहा है उसमें, ऐसा ऐसा इन्फ्लेशन के वजह से, उसे ज्यादा मत पूछना, ऐसा है। सर आई हाँ डोंट गो डीप इनटू इट, आई एम ट्रैक, ऐसे नहीं बोलने का कभी कि मैं ट्रैक नहीं कर रहा, मैं वो भी ट्रैक कर रहा हूँ। आई एम हैविंग अ सेकेंडरी रिसर्च ऑन दैट, देन नो एफएमजीजी में पता है क्या चल रहा है, मार्जिन्स क्या है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ऐसा हो रहा है ना, अर्बन डिमांड स्लो है, इतना ही पता है सर, डोंट गो डीप इनटू इट। हाँ सब ठीक है सर, ठीक है। ऐसा। सर एक आईटीसी का न्यूज़ था हाँ आज। हाँ बोलो। सर उन्होंने एक्वायर किया है सेंचुरी पल्प एंड पेपर करके है कंपनी, आदित्य बिरला रियल एस्टेट का, हाँ 3498 करोड़ में लाइक एक्वायर किया है। तो सर इनका जो आईटीसी का टोटल रेवेन्यू दिखाया है FY 24 में, वो हाँ अप्रोक्स 70,000 करोड़ का है, जिसमें 8300 करोड़ का केवल पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग से आता है। तो ये ऑलमोस्ट सर होता है 10 to 12% उनका रेवेन्यू शेयर का। और अभी जो ये एक्वायर कर रहे हैं तो उसमें 3000 करोड़ का रेवेन्यू और ऐड होगा, जो कि 40% होता है। लाइक जो इनका टोटल रेवेन्यू आ रहा है पेपर अच्छा। से, उसका 40% तो ये क्यों किया, मतलब मैंने होता एक है। ये न्यूज़ तो तो नहीं पढ़ा लाइक मैंने दूसरी ये चीज में ऑलरेडी पढ़ा। एक लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है। हाँ ये क्यों किया हाँ। है लोग ने, क्यों यस सर। एक्वायर किया। ये इसलिए किया है कि आईटीसी का जितने भी प्लांट्स है, लाइक 4 प्लांट्स है इसके, वो हाँ चारों साउथ इंडिया में है। और हाँ ये जो एक्वायर किया है ये उत्तराखंड में एक्वायर किया है, नॉर्थ में। तो सर वहां से यहाँ लाने का शिपिंग कॉस्ट, सारा कॉस्ट बढ़ता था। और वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, लाइक लोकल स्प्रेयर जो भी हैं। तो अच्छा एक प्लांट वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि एक प्लांट वो नॉर्थ इंडिया में भी ला रहे हैं। बाकी अगर आप
और अदर किसी जेके पेपर्स वगैरह का देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ, सॉरी साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में, नॉर्थ में इन लोग नहीं गए हैं। तो अच्छा हाँ, एक तो ये लाइक मेजर इनको एडवांटेज मिलेगा। दूसरा सर, एक यहाँ पे लास्ट में एक लिखा हुआ है कि कंसर्न है कि इसका वीक मार्जिन हो रहा है क्योंकि चाइना जो है वो डंप कर रहा है अपना लाइक चीपर प्रोडक्ट्स जो होता है लाइक रॉ मटेरियल वो इंडिया में। तो अच्छा सर इन्होंने ऐसा बोला है कि जो इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाएगा तो उससे हाँ उनको इफेक्ट पड़ेगा, तो लाइक इनका जो पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, जो कॉस्टिंग का जो पार्ट है। तो वो जो डंप कर रहे हैं तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। अच्छा। यस। तो ये इनको पेपर के लिए क्या यूज होता है? आईटीसी यूज फॉर व्हाट? क्या यूज करते हैं पेपर का ये नहीं, सिगरेट्स में? आईटीसी का जो आईटीसी इसमें मैंने एक देखा, मैं आपको बताता हूँ। सिगरेट्स में ही होगा ना, और किधर यूज करते हैं लोग पेपर? नहीं नहीं सर। सर क्लासमेट का नोटबुक आता है ना सर, आईटीसी का। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ओके ओके हाँ। पर ये कितना पोर्शन होगा उसके रेवेन्यू का? सो दैट आई हैव नो आइडिया। हाँ वही तो सर इसमें मैं देख रहा था लाइक आईटीसी का ही, तो हाँ। अभी जो रेवेन्यू सेगमेंट उन्होंने दिया है पेपर का, तो उसके कितना हिसाब है? से 2024 के हिसाब से 10 to 12% का है। अच्छा 10 to 12% आता है पेपर से? यस, वो मैं स्टार्टिंग में ही बोला आपको कि 10 to 12% का है 8,000 करोड़ का। लेकिन अभी जो इन्होंने एक्विजिशन किया है तो उसका जो हाँ रेवेन्यू है वो 3,500 करोड़ से है। तो वो मतलब लाइक एड ऑन बहुत ज्यादा करेगा उसमें, लाइक 40% का और एड ऑन करेगा रेवेन्यू में जो सेल है। सर क्लासमेट नोट के अलावा सब पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी तो काम आएगा पैकेजिंग एफएमसीजी में के भी काम अंदर आता सर। है हाँ। ना मैं बताता हूँ सर इसमें यूजेस क्या है। पैकेजिंग एंड स्पेशलिटी पेपर ब्रांड्स ऐसा लिखा हुआ है। पेपर बोर्ड ब्रांड जो एफएमसीजी फार्मा पैकेजिंग वगैरह जो करते हैं अच्छा हाँ, उनमें एफएम यूज अच्छा होता है। उसमें भी यूज होता है। रिसाइकलिंग पेपर का ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और आई जो, थिंक फिर तो उसका ये भी होगा, फिर वो सिगरेट्स में भी तो यूज होता है पेपर। हाँ सर होता है पर वो यस तो सर। छोटा पार्ट हो गया ना। लाइक अगर कॉपी वगैरह का देखा जाए, ऑफिस वर्क जो होता हाँ है, हाँ जैसे हाँ, करेक्ट क्लासमेट हो करेक्ट गया, हाँ। साथी करके एक उसका ब्रांड है इको फ्रेंडली, वो हाँ प्रिंटिंग और पब्लिश पेपर में जो यूज होता है वो जो पेज जो सीट आती है वो सब में इनका जाता है। करेक्ट करेक्ट अच्छा। यस सर। मुझे अच्छा। तो फिर अच्छा, तो आईटी से मेजर बड़ा वाला ना वो होटल था, तभी स्प्लिट हो गया ना? नहीं, स्प्लिट होने के बाद का मैं बता रहा हूँ। स्प्लिट होने के बाद का ये दिया है क्या वो लोग? तूने तुमने कहाँ से लिया? ये कहाँ से दिखा तुमको? ये मैंने इसमें मिंट में पढ़ा है, पेज नंबर। अच्छा सब दिया है क्या वो लोग ने मिंट में? हाँ, इन्होंने पूरा एक पूरा बड़ा आर्टिकल ही दिया है आधे पेज का। अच्छा इसमें नहीं था। सर मेरा आज रह गया मिंट पढ़ना। मिंट में है सर, पेज नंबर 8 में है। सर, हाँ ये आईटीसी का पेपर बोर्ड पेपर और पैकेजिंग का अलग ही सेगमेंट है। वो जो क्लासमेट का सेगमेंट है और सिगरेट्स का सेगमेंट है वो हाँ अलग है अलग ही FMCG है। में आता हाँ पैकेजिंग है। अलग और है, क्लासमेट अलग है ना हाँ। हाँ, मतलब जो क्लासमेट का सेगमेंट आता है वो एफएमसीजी अदर्स में आता है, और सिगरेट्स का सेगमेंट जो है वो सिगरेट एफएमसीजी में आता है। हाँ यस। और ये भी और जो मतलब एफएमसीजी में भी पैकेजिंग लगता होगा ना, मतलब लगता है वो, ये बोल रहा था। और सर इसमें एक और चीज डेटा दिया हुआ था। कहाँ पे था? एक सेकंड ना। अंजल पेज कहाँ नंबर 8, पेज नंबर 8 में पे? हेड पे मिड। किधर? अच्छा सबका अलग होता है, क्या था हेडिंग क्या था? आईटीसी बाइज बिरलाज पेपर बीज फॉर 3,500 करोड़। और नीचे सर, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा। इधर? और नीचे, हाँ हाँ ये ये रहा, अच्छा ओके। हाँ ये है। तो इसमें इन्होंने एक और चीज मेंशन किया है कि जो इनका प्लांट का जो कैपेसिटी है 1 मिलियन टन्स का उसका है हाँ। आईटीसी का। जो, और अभी जो एक्वायर कर रहे हैं सेंचुरी पेपर को, उसका हाँ 4,80 मिलियन लाइक एमटी पर एनम का है। तो ये अप्रोक्स 50% हो गया सर और एड ऑन इसमें। ओ यस। तो मेजर एक्विजिशन है। और इसमें एक और चीज है कि इन्होंने सारा पैसा रिजर्व से दिया है। इनका 30,000 करोड़ का रिजर्व है, तो उसमें से इन्होंने बाई किया है। अच्छा। तो ये तो कितने इनको तो ये कितने में हुआ एक्विजिशन? थ्री 22 सही है क्या? थ्री थाउजेंड यस नाइन सर, हंड्रेड 3,498 करोड़ का हुआ है। तो अभी ना कैसा होता है, ये जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन का एक पार्ट है, एवरीवन लिसन दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एक्विजिशन ना, ओवरऑल व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो फॉर प्राइवेट इक्विटी रोल्स या यू नो स्पेसिफिकली आईबी रोल्स, तो लेट्स से पेपर इंडस्ट्री तो हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं,
बट लेट्स से प्राइवेट इक्विटी में ऐसा होता है कि यू कैन ट्रैक एनी इंडस्ट्री, मतलब जब भी जो डेटा आता है, जब भी जो एक्वेशन आता है, तब यू हैव टू डू इट। तो अभी हमको पता है कि 4,300 करोड़ में इसने बाय किया है, तो यू हैव टू सी। अभी यूजुअली इट हैपेंस ऑन ईवी बाय एबिटडा। जितने भी एक्वेशन होते हैं पैट पे नहीं होते, ईवी बाय एबिटडा पे होते हैं, बिकॉज इट्स अ कैपेक्स हैवी कंपनीज। सो अगर हमको सेंचुरी अभी इसका पता नहीं कितना है, सेंचुरी पल्प एंड पेपर तो एग्जैक्टली कितने का आता है, तो वी हैव टू फाइंड इट समवेयर कि इसका एबिटडा कितना था, या इसका कोई तो एक नंबर होना चाहिए, इधर सेल्स होना चाहिए या इधर एबिटडा होना चाहिए। तो यू हैव टू फाइंड, तो वहां पे हमको पता चलेगा कि क्या प्राइस पे वैल्यूएशन हुआ, बिकॉज नंबर्स डोंट हैव एनी वैल्यू। ये 3,400 पे किया, अच्छा है बुरा है, ज्यादा दिया कम दिया, तो क्या वैल्यूएशन पे दिया, सेल्स इसका अराउंड यही है, 3,400 करोड़ का सेल है। तो बट उसका सर एबिटडा पे होना हेलो, चाहिए। क्या हुआ? ये सर बोल इनका रहे थे सर। इनका मेन जो लाइक मैनेजमेंट का जो कहना था ये हाँ, बिरला का, कि ये मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे कोर बिजनेस पे लाइक ध्यान देना फोकस है करना है स्टेट का, आदित्य बिरला इसके लिए। स्टेट। यस सर। पर इसका आदित्य बिरला का किधर दिया है पैकेजिंग कंट्री, वाइल आदित्य बिरला पल्प ये अच्छा हैज अ रेवेन्यू ऑफ 3,000 करोड़। 3,370। तो वन टाइम से भी नीचे लिया है फिर ये तो। हाँ तो ऐसा हाँ। देखा गया तो ये तो फिर घाटे का सौदा किया है उसने। यस सर, तो उन्होंने बोला तो है कि उनको लाइक फर्दर ग्रोथ पे ध्यान देना है इसको लाइक। नहीं बट फिर फायदा तो इसको हुआ है आदित्य बिरला को, हाँ। आईटीसी को तो घाटा ही हुआ है अगर ये तो फिर वन टाइम भी नहीं हुआ सेल्स का तो। रतन, where you got this data? EBITDA is 38%? ये है क्या रतन? You're talking, I think you're talking about Ria Aditya Birla, na? If I'm not wrong, the Century Pulp, ना? यस। ओके। सो बोल रहा 38% पे हुआ है, तो इफ आई टॉक अबाउट, ठीक है, तो वी कैन हैव दिस ना डेटा। कभी किसी ने पूछा ना एक्विजिशन क्या प्राइस पे हुआ है, रतन इज सेइंग इन द प्रेस रिलीज। ओके, लेट मी सी इन द प्रेस रिलीज है क्या। काफी इंपॉर्टेंट डेटा ये ना, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में काफी काम आता है। आईटीसी लमसम कंसिडर 3,500 on a cash free. Okay. Okay, this will increase. Acha, they have given everything. Oops. But this is ITC, na? FI responsible. Let me announcing the strategy acquisition of pulp. Oops. No, this is different, Ratan. ये तो ITC का है। ITC paper and packaging segment now. इसका 8,000 है and इसका EBITDA अच्छा, तो what we can see is, you know, see, so we don't want ITCs, we want the centuries. So what we can do is, अभी ना we can say ITC's paper both इसका EBITDA 21% है, तो assuming उसका भी century pulp का भी उतना ही होगा, assuming, because we don't have any data on it, because I asked you specifically वो 38% कहाँ से है, because इतना जल्दी वो मिलता नहीं है, इतना इतना इजीली नहीं मिलता है वो। तो वी कैन, यही अजम्पशन होता है। तो व्हाट वी कैन अज्यूम इज, अंजल तुम भी देखना कि जब कोई न्यूज देते हो ना, तो यू हैव टू थिंक इन दिस वे कि वो क्या प्राइस ईवी बाय EBITDA पे हुआ है, क्योंकि हमेशा EBITDA इज द मेन फिगर, पैट पे हम नहीं जाते। तो 21% एंड हमको सेल्स प्राइस है उसका, व्हाट वाज द सेल्स प्राइस? 3,000 3,375। तो आई कैन डू दिस, यू नो, 3,375, तो ऑब्वियसली वो प्राइस टू सेल्स तो बहुत कम है। तो 3,375 का अज्यूमिंग कि सबका 21% मार्जिन होता है, तो आई थिंक इसका EBITDA विल बी 708 करोड़ एंड दे हैव पेड अराउंड 3,500 करोड़ डिवाइड बाय 78 करोड़, तो अराउंड 5 टाइम्स ईवी बाय EBITDA पे दे हैव परचेस द कंपनी। तो कल जाके ना पेपर इंडस्ट्री में कभी कुछ आया तो इधर यू हैव टू नो अबाउट कि यार पेपर इंडस्ट्री में ना ये लास्ट एक्विजिशन जो हुआ था आईटीसी का, वो 5 टाइम्स ईवी बाय EBITDA पे हुआ था। तो दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट इन इंटरव्यूज, या यू नो आगे जाके प्राइवेट इक्विटी में ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू नो व्हेन आई वाज डूइंग फार्मा एनालिसिस,
एक कंपनी ने एक्विजिशन किया था कोई, तो ठीक है, अभी लेट्स से कोई प्राइवेट कंपनी ने एक्वायर किया है कोई पब्लिक कंपनी को, तो वो जो पब्लिक कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है बुरा है, तो लेट्स से अभी जो भी है दूसरा कंपनी से वेस्ट कोस्ट पेपर है, लेट्स से उसको किसी ने एक्वायर किया, तो वो लोग ने उसको 10 टाइम्स भरा है, तो इट इज अ गुड साइन ना कि उनको ज्यादा मिला है। कि लास्ट आईटीसी ने जब किया था तो 5 टाइम्स पे किया था, या नया कोई कंपनी आ रहा है, लेट्स से न्यू कंपनी इज कमिंग इनटू मार्केट एंड यू हैव टू वैल्यू इट, तो यू हैव टू वैल्यू, तुमको पता है इट शुड बी वैल्यूड एट 5 टाइम्स। नील कहाँ से मिला ये डेटा? सेंचुरी पल अलग से थोड़ी लिस्टेड है, अलग से लिस्टेड है सेंचुरी पल। सेंचुरी पल्प इज नॉट डिफरेंटली लिस्टेड। सर किसने ये बोला 38% का मार्जिन है ये पेपर बोर्ड पैकेजिंग का? You can see Aditya Birla Real Estate for Century Company. नहीं, आदित्य बिरला रियल एस्टेट का थोड़ी हमको चाहिए, हमको तो वो उसका चाहिए ना, पल्प बिजनेस का चाहिए, सबकी मार्जिन अलग हाँ तो होती है। उसके अंडर में ही आता है ना, आदित्य बिरला रियल एस्टेट के अंडर में आता है सेंचुरी का। हाँ, तो आदित्य बिरला, हाउ कैन यू टेक डायरेक्टली आदित्य बिरला का मार्जिन? कैन नॉट टेक डायरेक्टली आदित्य बिरला का मार्जिन नहीं ले सकते, यू हैव टू फाइंड इट डायरेक्ट, ऐसे थोड़ी रियल है। अभी तुम टाटा मोटर्स का देखोगे, टाटा मोटर्स का सीधा मार्जिन ले लोगे, वो तो जैगवार भी बेचता है, वो ईवी भी बेचता है, कमर्शियल व्हीकल भी बेचता है, यू कैन नॉट कंपेयर जैगवार्स मार्जिन विद टाटा मोटर्स मार्जिन विद योर मारुति's मार्जिन। हाँ, वो इतना इजीली नहीं मिलता है, तो ढूंढना नहीं, पड़ता उसका है। पल्प एंड पेपर का डेटा दिया हुआ है अलग से दिया हुआ है एक्चुअली, आदित्य बिरला रियल एस्टेट में, मतलब पीपीटी में। आदित्य बिरला, सही है, रियल एस्टेट में दिया हुआ है क्वार्टर्स। हाँ, पल्प एंड पेपर, ओके, तो यू कैन डू दैट, पल्प एंड पेपर यहाँ पे है, एंड इसका पल्प एंड तो लॉस मेकिंग है, ठीक है, नहीं ओवरऑल देखते हैं, लेट मी लुक एट द लॉस कर रहा है। अच्छा हाँ, ये ऐसा कर सकते हो देन, यू कैन गो ऑन दिस एनुअल नंबर्स, एनुअल नंबर्स यहाँ पे इसके सेल्स, पल्प एंड पेपर, ओके, पल्प एंड पेपर हैज अ रेवेन्यू ऑफ 3000, हाँ यही था बराबर, यही था 3500 करोड़, एंड उसका प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर, सो दिस इज इबिट, ईबीआईटी है ये, सो ईबीआईटी डेप्रिसिएशन हम लोग ने अलग, यूजुअली इट इज आफ्टर, बिफोर डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, आफ्टर तो इबिट दिया है लोग ने, तो इबिट इज 297, ठीक है, करोड़ में नंबर था, तो ईवी बाय इबिट शुड बी 3500 डिवाइड बाय 297। सर ये आईटीसी की रिपोर्ट थी? क्या हुआ? 11 टाइम्स क्या हुआ आईटीसी का? रिपोर्ट रिपोर्ट आईटीसी की है? नहीं नहीं, रिपोर्ट तो वो आदित्य बिरला ना, आदित्य बिरला रियल एस्टेट की थी ना। ओके ओके। हाँ, उसमें वो सेगमेंट में आया ना, तो सेगमेंट में दिया है लोग ने, पेल पन पेपर है, यही था ना, यही नंबर था ना, मैच हुआ ना 3375 करोड़। यस। फिर उसके बाद वो लोग ने यहाँ पे उसके सेगमेंट रिजल्ट में दिया है, बट ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है, यूजुअली बिफोर डेप्रिसिएशन होता है, तो हमने ईवी बाय इबिट इज अराउंड 11 टाइम्स, क्योंकि मिल गया हमको प्रॉफिट कितना है, तो इसका तुम देखोगे तो 279 डिवाइड बाय 3375, तो इसका 8% मार्जिन है अप्रोक्सीमेट, आई थिंक इबिडा इबिडा नहीं है, मतलब डेप्रिसिएशन तो नहीं दिया है, तो ये हो गया। हाँ, तो ये ऐसा ढूंढते हैं, तो कल उठ के पता चला था ईवी बाय इबिट कितना था, तो इट इज 11 टाइम्स, 11 टाइम्स वाज द ईवी बाय इबिट, so this is how you give acquisition news, because सर इधर numbers have known value। क्या बोल रहा हो? मैं बोल रहा हूँ इधर इनके जो मार्जिन है वो 8% पे है, बट आईटीसी में जो उनका जो पेपर पैकेजिंग का उसका जो है वो 16% पे। पेपर क्या? आईटीसी का जो सेगमेंट है ना पेपर वाला, हाँ अलग से पेपर पेपर बोर्ड्स पेपर और पैकेजिंग वाला, उसके हाँ, जो मतलब इबिट है वो 16% पे एज कम्पेयर टू 8%। किधर 8% मिला ना हमको अभी? नहीं नहीं, ये तो हमारा इसका है ना जो कंपनी इन्होंने एक्वायर करी, हाँ हाँ, अच्छा आईटीसी का, ओके आईटीसी का, आईटीसी का।
ओके ओके फाइन। सर सीएनबीसी पे आया है, बेटा 500 करोड़ है सर। 500 करोड़? हाँ किसका? सर, ये सर सेंचुरी का एबिटा। अच्छा, इतना डेप्रिसिएशन लगता है क्या? ऑलमोस्ट 200 करोड़ का डेप्रिसिएशन। ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। इसका डेप्रिसिएशन है सर कितना पूरे साल का? सर ये आई साल का ही सीएनबीसी पूरा के 200 करोड़ है, ये लोग ने वो न्यूज़ पे हाँ है। ऐड कर दिया सीधा। हाँ, ये लोग ऐसे ही करते हैं वो सीएनबीसी वाले भी, झूठे। टू से देखा क्या किया ये लोग ने, 279 को सीधा ऐड कर दिया वो 200 करोड़। वो 200 को तो पूरे कंपनी का डेप्रिसिएशन है। और बाकी भी तो है ना, सिर्फ पेपर के लिए थोड़ी लगता है एसेट्स। तो ऐसा करना है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो, इफ यू वांट टू डू दिस। तो ये एसेट है, कितना है इसका आउट ऑफ द टोटल एसेट्स? टोटल इफ यू सी दिस, 2995 डिवाइड बाय 8495, मतलब 35% कैपेक्स इज ऑफ तुम्हारा। ये तो मोटा मोटा असम्पशन है कि 35% एसेट्स आर यूज बाय पल्प एंड पेपर। डेप्रिसिएशन का 200 करोड़ में से आई विल से 35% इज 70 करोड़ है, तो 279 प्लस 350 करोड़ जाएगा। 500 करोड़ गलत अमाउंट है। तो 10 टाइम्स पे हुआ ईवी बाई EBITDA। फेयर ना, वही आया था हमको भी। तो मोटा मोटा 10 टाइम्स पे। दिस इज हाउ यू डू इट। हाँ, ये कैलकुलेट करके तुम बताते हो मैनेजमेंट को कि क्या हुआ है एक्चुअली। ओके, अंडरस्टैंड दिस है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो ये आ ही गया था न्यूज आज, को बता दिया कि हाउ डज द एक्वेशन वर्क। देखो कितना कैलकुलेट किया मैंने। एंड मुझे फ्रेशर्स बोलते कि सर मुझे ना इसका मिलेगा नहीं ईवी बाई EBITDA। एंड 500 करोड़ तो गलत आंसर ही था वो, क्योंकि तुमने नंबर वो लोग ने बोला था ना। वो लोग ऐसे उधर भी तो एनालिस्ट ही होते हैं, फ्रेशर्स ही होते हैं वो भी, मतलब ठीक है, एक्सपीरियंस होते हैं। वो लोग क्विकली कर देते हैं, इतना कोई जाके देखता नहीं है। और ये तो डेटा मिल गया, ठीक है, कभी कभार तो नहीं मिल जाता डेटा। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस डेटा। अभी इसमें था ऑलरेडी, ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी था। अनलिस्टेड होता तो मिनिमलिस्टिक। मिनिमलिस्टिक तो अनलिस्टेड है, उसके अंदर तो पता ही नहीं कुछ। तो वो न्यूज में ही किधर तो मिलेगा कि क्या था, कोई तो डेटा पॉइंट। दिस इज मोटा मोटा यू कैन डू दिस कि 10 टाइम्स पे एक्वेशन हुआ है। मतलब स्टैंड अलोन ही आई थिंक दिस कंसोल भी है क्या इसका? कंसोल एज वेल, कंसोल का सेम ही है, नंबर्स आर सेम। ओके ओके गाइस, सो गुड गुड दैट यू नो गॉट दिस। पता चला आज कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन एक्विजिशन। इट इज ऑलवेज ईवी बाय EBITDA। प्राइस टू सेल्स होता है अगर इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। जैसे स्टार्टअप एक्विजिशन होता है, प्राइस टू सेल्स पे होता है। बट 99% ऑफ द टाइम इट इज ईवी बाय EBITDA, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। मतलब क्योंकि वो हर एक का मेथड अलग होता है। एंड पैट तो अलग ही होता है, तो यू एक्विजिशन पैट पे नहीं होता। फाइन, क्या? ओके गाइस, ओके, सी यू टुमारो। Thank you, sir. वेलकम। Sir, can you take one class on private equity, not 2.5 hour, but 1 hour? प्राइवेट इक्विटी में क्या है? ये सेम ही तो है इक्विटी का ही, तो है, और कुछ नहीं सर है प्राइवेट। पूरा वैल्यूएशन वगैरह सर प्राइवेट इक्विटी में किस तरह से यूज करते हैं? वो ना, सी प्राइवेट पब्लिक इक्विटी और प्राइवेट इक्विटी अलग से नहीं करते। प्राइवेट इक्विटी में सिर्फ रिसर्च ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको कंपैरिजन मिल जाता है, प्राइवेट इक्विटी में कंपैरिजन नहीं मिलता। तो वो बोलते हैं ना मार्केट मल्टीपल मेथड। तो लेट्स से अभी प्राइवेट इक्विटी की बात हुई है, तुमको कोई पेपर कंपनी खरीदनी है जो अनलिस्टेड है, ठीक है? तो तुम क्या ईवी बाई EBITDA यूज करोगे? 10 टाइम्स। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन मेथड, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मेथड। तो सर ठीक है? 10 टाइम स्टैंडर्ड रहता है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, अभी तो इसका मिला ना 10 टाइम्स, स्टैंडर्ड नहीं होता, ये मिला ना 10 टाइम्स। ओके ओके। कैलकुलेट किया ना हमने अभी। यस सर यस। तो ये जब तुम एग्जांपल ऑफिस में जा रहे हो ना, तुमने कोई कंपनी पे काम करा, अचानक से तुमको पता चला कि अरे कोई कंपनी तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आया कि पेपर कंपनी का प्रोजेक्ट है। तो तुमको पता होना चाहिए कि आईटीसी ने उसको 10 टाइम्स पे एक्वायर किया था। तो इंडस्ट्री में ये रेट तो है 10 टाइम्स। अगर वो सामने वाला ज्यादा मांग रहा है तो यू हैव टू नेगोशिएट कि भाई तू किस हिसाब से ज्यादा मांग रहा है। क्योंकि आदित्य बिरला जितना है, इतना बड़ा प्लेयर है तू। आदित्य बिरला को मैंने 10 टाइम्स दिया, तेरे को तो मैं 8 टाइम ही दूंगा। सो ये ऐसे पता चलता है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी। तो इसके लिए पब्लिक इक्विटी, तुमको पहला फाइनेंस तो पता होना चाहिए, सब न्यूज पढ़ना पता होना चाहिए क्या चल रहा है पब्लिक में, तभी प्राइवेट कर पाओगे। सर पर अगर हम मतलब हम इस एक एक ट्रांजैक्शन को अगर बेस लेके आगे बढ़ेंगे तो आईटीसी के केस में तो काफी डिफरेंट हो जाएगा ना, क्योंकि आईटीसी अभी 2021 से लेके अभी तक सबसे ज्यादा जो फोकस्ड है वो पेपर पैकेजिंग वाले सेगमेंट पे कर रही है।
तो हाँ, उस हिसाब से अगर हम उनका ईवी बीटा का रेशियो देखेंगे तो काफी कम आएगा। बट हम तो आईटीसी का थोड़ी देख रहे थे, हम तो आदित्य नहीं, बिरला मैं का थे। मैं 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 एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम आदित्य बिरला की जगह आईटीसी का देखें और उसको बेस बना के ऐसे आगे बढ़े और मतलब प्राइवेट इक्विटी में वैल्यूएशंस को देखेंगे तो वो बेस काफी अलग नहीं हो जाएगा। नहीं, तो वही मैं बोला ना कि अभी आदित्य बिरला को तुम 10 टाइम्स दे रहे हो, तो ऑब्वियसली छोटे कंपनी को 10 टाइम्स देना ही नहीं चाहिए तुमको, तो उसको डिस्काउंट पे दोगे। हम्म। मतलब 10 टाइम्स तो हाई एंड पे हो गया, कि इसके ऊपर तो भूल ही जाओ, उसके नीचे ही मिलेगा ओके। जो भी मिलेगा वो। तो फिर उसके बहुत रिसर्च होता है कि तुम्हारा क्या एसेट कितना बड़ा है, वो अलग अलग बहुत रिसर्च होता है। मैनेजमेंट कैसा है ना, कौन है, उसका हिस्ट्री क्या है, फिर उसका मार्जिन्स क्या है, ग्रोथ कितना है उसका, तो वो सब अलग हो गया फिर। तो ये 10 टाइम्स तो मुझे बेस में लास्ट मिल गया कि भाई इसके ऊपर तो भूल जाएगी, इसके ऊपर तो मिलने से रहा, क्योंकि आदित्य को इतना मिलता है, तुमको तो इससे कम ही मिलेगा, ऐसा। फिर वो नेगोशिएशंस पे आता है। बट एक डेटा तो मिला, हमको पता चला किस किस पे बेचना है, हम्म। ऐसा होता है, इधर से हमको डेटा मिल गया। क्या? यस। ओके। ओके गाइस, थैंक यू, गुड डिस्कशन टुडे। Thank you, sir. थैंक यू। ओके सर। See you tomorrow. Okay, bye bye. Acha, Neil, which papers to read is that, I have 5 subscription. That is Economic Times. Neil है क्या? हाँ. Economic Times, Business Standard, Business Line, Financial Express, Mint. 5 न्यूज़पेपर्स तो कहाँ ना कहाँ घूम फिर के न्यूज आते हैं ये सब में। तो मैं आई मेक श्योर कि आई रीड इट, गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स। जो भी टॉपिक अच्छा लगता है वो मैं पढ़ता हूँ, रिलेटेड टू मेरे को जो समझ में आता है वो। क्या? Okay, guys. See you. Have a nice day. See you tomorrow. Bye bye. थैंक यू सर। सर Thank you, हैप्पी sir. सर हैप्पी न्यू ईयर। क्या बोल रहे हैं? हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू, थैंक यू।